Good morning, church. We welcome you once again from around the globe. And we thank you for joining with us this morning. And we believe and hope that today will be a day when you will testify the mighty work of God in your life. And we also believe that as you have joined with us, you will share this link with your friends and family so that they do not miss the online Sunday service. हम हमारे social platforms में हैं, हम Facebook में हैं, Instagram में हमारा account है और हमारा YouTube channel है. तो हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप काइंडली उसे लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ आप इसे ज़रूर शेयर करिएगा. Come, let us pray and welcome Jesus into our family, into our homes this morning. Father in heaven, we thank you for this day. We thank you, Lord, that you are merciful. And yes, as your word says, that, Lord, your mercies are new every single morning. And even today, as we gather in our homes, O Lord, joining through this medium of technology, we believe, O Lord, that you are present in every house, O Lord. You are present in every car. You are present in every parking lot. You are present everywhere, O Lord. And as we worship you, help us, Jesus, to experience your mighty touch, O Lord. Help us, Father, to testify your glory, O Lord. And this morning, we open our hearts, O Lord. We humble ourselves, O Lord. And we say, come, Holy Spirit. Speak to us individually, O Lord. Speak to us as a family, Master. And as, O Father, we sit at your throne. We sit at your feet, O Lord. We believe that you have a special word for us, O Lord, that will change our life, that will change our destiny once and for all. We worship you. We praise you. We welcome you. Come and take over. We give you all the glory and honor. In your name, Jesus, we say amen. This is a house of worship. This is a place of praise, where every demon trembles, where we proclaim your name. This is a house of healing. Our hearts are full of faith. You have our full attention. You have the final say. Come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is a house of miracles. We bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is a house of miracles. Come alive. Come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is a house of miracles. Resurrection power. Your blood
runs through our veins. Your kingdom triumphs so well. Even the coldest grave, there's resurrection power. Your blood runs through our veins. Your kingdom triumphs so well. Even the coldest grave. Come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is a house of miracles. We bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is a house of miracles. Church, come alive. Oh, come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is a house of miracles. We bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is a house of miracles. I still believe you're moving. I still believe you're speaking. God, I believe you're working all things for good. I fix my eyes on heaven. God, I receive your vision. God, I believe you're working all things for good. I still believe you're moving. I still believe you're speaking. God, I believe you're working all things for good. I fix my eyes on heaven. God, I receive your vision. God, I believe you're working all things for good. I still believe. I still believe you're moving. I still believe you're speaking. God, I believe you're working all things for good. I fix my eyes. I fix my eyes on heaven. God, I receive your vision. God, I believe you're working all things for good. Come alive. Come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is the house of miracles. We bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is the house of miracles. Come alive. Oh, come alive in the name of Jesus. This is the house of miracles. We bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is a house of miracles. Come alive in the name of Jesus. Come alive in
This is a house of miracles. सबसे ऊंचा है तेरा नाम यीशु, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है तेरा नाम। सबसे ऊंचा है तेरा नाम, यीशु का नाम। ओ, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। और पहाड़ों से हर तूफानों से आसमानों से सारे नामों से यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। हालेलुया, हालेलुया, Yeshua, hallelujah, सबसे ऊंचा है तेरा नाम। कभी शामिल कर कहे, सबसे ऊंचा है यीशु नाम, यीशु का नाम। और पहाड़ों से हर तूफानों से आसमान
करते हैं हम सजदा यहाँ हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ करते हैं हम सजदा यहाँ हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ करते हैं हम सजदा ऊंचा उठाएंगे यीशु तेरा नाम हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ करते हैं हम सजदा हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ करते हैं हम सजदा तेरा नाम ऊंचा है यीशु तेरा नाम ऊंचा है यीशु तेरा नाम ऊंचा है सबसे ऊंचा है ओ यीशु यीशु तेरा नाम ओ यीशु तेरा नाम ऊंचा है यीशु तेरा नाम ऊंचा है सबसे ऊंचा है बीमारी से हर एक कमजोरी से हर एक श्राप से तू चाहे हर एक बीमारी से हर एक कमजोरी से हर एक श्राप से तू चाहे तेरा नाम सबसे ऊंचा है तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु नाम सबसे ऊंचा है तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु तेरा सबसे ऊंचा है हर एक प्रधानता और अधिकारी से सामर्थ्य और प्रतिभा से ऊंचा है हर एक प्रधानता और अधिकारी से सामर्थ्य और प्रभुता से तू चाहे
ऊंचा है तेरा नाम सबसे ऊंचा है तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु नाम सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम ऊंचा है यीशु तेरा नाम ऊंचा है यीशु तेरा नाम ऊंचा है सबसे ऊंचा ओ यीशु तेरा नाम ऊंचा है तेरा नाम ऊंचा है यीशु तेरा नाम ऊंचा है कलीसिया मिलकर यीशु तेरा नाम ऊंचा है यीशु तेरा नाम ऊंचा है सबसे ऊंचा है ओ सारे नामों से ऊंचा है यीशु का नाम सारे नामों से ऊंचा है यीशु का नाम ऊंचा उठाएंगे ऊंचा उठाएंगे ऊंचा उठाएंगे आइए सब मिलकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए यीशु के नाम को ऊंचा उठाए कलीसिया मिलकर यीशु के नाम को ऊंचा ऊंचा उठाए उठाएंगे ऊंचा उठाएंगे ऊंचा उठाएंगे ऊंचा उठाएंगे ऊंचा उठाएंगे ओ ऊंचा उठाएंगे ऊंचा उठाएंगे ऊंचा उठाएंगे ऊंचा उठाएंगे यीशु के नाम को ऊंचा उठाएंगे 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 कलीसिया परमेश्वर की आराधना करे कलीसिया मिलकर परमेश्वर की आराधना करे Yes, Jesus. हम आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं यीशु
हर एक परिस्थितियों में हम यीशु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। उस अंधकार के बीच में यीशु हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। उस तराई के बीच में यीशु हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। कलीसिया मिलकर यीशु हम आपकी आराधना करते हैं। Yes, Jesus, हम आपकी आराधना करते हैं। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी महान उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में है। हम जहाँ पर भी है आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप हमारे साथ हैं। उस अंधकार के बीच में यीशु आप हमारे साथ में हैं। उस तराई के बीच में यीशु आप हमारे साथ में हैं। और हर एक नामों से ऊंचा यीशु आपका नाम है। Father, we worship you, Lord. We honor you, Jesus. We adore you, Father. We love you, God. And together as a church, we worship you and we praise your holy name. We give you all the glory and honor, and in Jesus' name we say amen. सबको जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो आज के ये सुंदर दिन के लिए। हम सभी जन मिल कर के अपने अपने घरों में होते रहते हुए हम सभी जन उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनका बर्थडे एनिवर्सरी आज और इस सप्ताह पड़ता है। प्रार्थना करने से पहले हम उनके लिए एक वचन जो आशीष का वचन है हम उसे पढ़ना चाहेंगे। May the good God bless you richly on your birthday and anniversary. We pray for you according to Psalm chapter 20 verse 4. May He grant you according to your heart's desire and fulfill all your purpose. Wish you a very happy birthday and happy anniversary. भला परमेश्वर आपके जन्मदिन और शादी की सालगिरह के अवसर पर ढेर सारी आशीष दे। भजन संहिता 20:4 के अनुसार हम आपके लिए यह प्रार्थना करते हैं, वह तेरी मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सुफल करे। हमारी ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। हैप्पी बर्थडे और हैप्पी एनिवर्सरी। हम प्रार्थना करें इस वचन के मुताबिक। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए प्रभु। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन तमाम हमारे प्रियजनों के लिए प्रभु जिनका बर्थडे एनिवर्सरी आज और इस सप्ताह पड़ता है। आपका वचन कहता है भजन संहिता 20:4 के अनुसार प्रभु परमेश्वर आपने कहा प्रभु आप उनकी इच्छा को पूरी करेंगे, आप उनकी तमाम युक्तियों को पूरा करेंगे। परमेश्वर पिता, इस वचन के मुताबिक हम उनके जीवन में प्रभु आशीष को बोलते हैं और हम यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर होने दीजिए उनकी जो भी इच्छा है, जो भी योजनाएं हैं, युक्तियां हैं प्रभु परमेश्वर पिता उनकी आपकी ओर से उनके जीवन में पूरी होने पाए प्रभु। और परमेश्वर पिता आपकी आशीष प्रभु उनके जीवन में बहुतायत से आने पाए प्रभु। और साथ ही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि लगातार प्रभु आपकी उपस्थिति भी प्रभु उनके जीवन में बनी रहे, आपकी दृष्टि उनके ऊपर बनी रहे प्रभु। और परमेश्वर पिता आपकी सुरक्षा भी प्रभु उनके जीवन में लगातार प्रभु आप उन्हें दे प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता आपके बच्चे आप में प्रभु आनंदित रह सके प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता ये सुंदर समय के लिए, यीशु प्रभु आपके जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। पास्टर और पूरी विक्ट्री फैमिली की ओर से आप सबको आपके बर्थडे एनिवर्सरी का बहुत बहुत बधाई। प्रभु आपको आशीष दे और परमेश्वर अपने अनुग्रह को आपके जीवन में बनाए रखे। आइए हम
उत्साह के लिए एक वचन को पढ़ेंगे। मैं आपके आगे नहूम से पढ़ना चाहती हूँ। नहूम 1 अध्याय का 7 पद में इस प्रकार से कहता है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वो दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। सच में जब आप और हम संकट में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तो वचन कहता है कि वो हमारे लिए दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। जब आप और हम उनके शरण में जाते हैं, वे हमें यूं ही नहीं छोड़ते हैं, बल्कि उनकी सुधि वो रखता है। सो इसे मैं आपके आगे एम्प्लीफाइड वर्जन में मैं पढ़ना चाहूँगी। यहाँ इस प्रकार से कहता है, द लॉर्ड इज़ गुड एंड ए स्ट्रेंथ एंड स्ट्रॉन्ग होल्ड इन द डे ऑफ ट्रबल। कहता है प्रभु भला है और मुसीबत के समय वो बल और मजबूत किला है। हालेलुया। वचन बहुत ही स्पष्ट आपके लिए मेरे लिए कहता है कि परमेश्वर भला है और वो मुसीबत के समय में वो बल है, वो सामर्थ है और वो किला है जहाँ पर आप और हम छुप सकते हैं। और नीचे कहता है, ही नोज, रिकॉग्नाइजेस, हैज़ नॉलेज ऑफ एंड अंडरस्टैंड दोज हु टेक रेफ्यूज एंड ट्रस्ट इन हिम। कहता है कि जो लोग उनके शरण में जाते हैं और उन पर भरोसा करते हैं, वो उन्हें समझता है, वो उन्हें पहचानता है और वो उनके विषय में उनको ज्ञान है। मेरे प्रिय हो, मैं इस वचन से आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ। जब भी आप और हम तकलीफ़ में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, दुख में होते हैं, कोई भी ऐसी बातें जो हमें दुखी करती है, उस समय हम होते हैं, तो मेरे प्रिय हो, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के शरण में जाएं, क्योंकि वो हमें समझता है किस दुख से हम गुजर रहे हैं, किस कठिन परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं। उनको पता है, वो हमें समझता है, वो हमें याद करता है, वो हमें कभी नहीं भूलता है। वचन कहता है, जब आप और हम भजन संगीता 46 का 1 में जब आप और हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। मेरे प्रिय हो, भजन संगीता में दाऊद भी कहता है कि परमेश्वर आपका मेरा शरण स्थान है, संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। मेरे प्रिय हो, कभी भी किसी भी समय कहीं पर भी जब आप और हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमेश्वर तुरंत आपको मुझको सहायता करने के लिए मौजूद होते हैं। और इस एम्प्लीफाइड वर्जन में कहता है कि वो हमें समझता है। बहुत सा समय हम सोच सकते हैं, कौन मुझे समझता है, कोई भी मुझे नहीं समझता। लेकिन मेरे प्रिय, मैं बताऊं, जिस परमेश्वर के शरण में आप और हम जाते हैं, जिस परमेश्वर पर आप और हम मुसीबत के समय में भरोसा करते हैं, वो आपको मुझको समझता है। उन्हें पता है आपके मेरे बारे में, हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट और हमारा जो फ्यूचर है, वो उनको पता है। जब आप और हम उनके शरण में जाते हैं, मेरे प्रिय हो, तो वो हमें सहायता करते हैं। और इसीलिए नहूम कहता है कि यहोवा भला है, संकट के दिन में वो दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। हालेलुया। संकट के दिन वो हमारे लिए दृढ़ गढ़ ठहरता है, वो हमें संभालता है, वो हमें बचाता है और वो हमारी सुधि रख करके, जब आप और हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तो हमारी सुधि रख करके वो हमें उत्तर देता है और वो हमें सहायता प्रदान करता है। हालेलुया। ये कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर का वचन सच में आपके लिए, मेरे लिए एक उत्साह को, शांति को, विश्वास को, भरोसा को देता है। और देता ही नहीं, बल्कि ये वचन आपके जीवन में, मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म को लाता है और हमारे जीवन की परिस्थिति को वो बदलता है। हालेलुया। सो प्रभु को धन्यवाद दो ये समय के लिए। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते ये सुंदर समय के लिए। सच में प्रभु, नहूम कहता है
कि प्रभु आप भला है। आप हमारे लिए दृढ़ गढ़ ठहरते हैं जब हम मुसीबत में होते हैं, और आप अपने शरणागतों की सुधि रखते हैं प्रभु। इसलिए आपका वचन कहता है कि आप अपने दृष्टि को धर्मी जन की ओर लगाए रहते हैं। आप अपने दृष्टि को अपने लोगों से नहीं हटाते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते इस प्रतिज्ञा के लिए प्रभु, धन्यवाद देते इस वचन के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु, हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज की सुबह हम जितने जन अपने घरों में रह करके प्रभु परमेश्वर हम आपकी आराधना कर रहे हैं, आपके वचन से सुन रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता। हम नहीं जानते हैं प्रभु कि कितने लोग किस परिस्थिति में हैं, लेकिन हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि होने दीजिए हम हर एक जन व्यक्तिगत रूप से और पारिवारिक रूप से प्रभु हम आप पर भरोसा कर सके और आपके शरण में हम आ सके प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता आपकी ओर से हमें सहायता मिले प्रभु, और आपकी ओर से हमारे जीवन में छुटकारा आने पाए प्रभु। परमेश्वर, साथ ही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे दशवांशों के लिए और भेंटों के लिए जो प्रभु हम आपके भवन में प्रभु हम लाते हैं परमेश्वर पिता, हमें कमाने के लिए ताकत और बुद्धि आप हमें देते हैं प्रभु। इसलिए परमेश्वर पिता, आपके वचन के मुताबिक प्रभु हम आपके चरण में प्रभु जी हम प्रभु अपने दशवांशों को भेंटों को लाते हैं प्रभु। होने दीजिए परमेश्वर पिता ये भेंट आपके आगे प्रभु सुगंधित धूप की तरफ पहुंच सके प्रभु, और इस भेंटों के द्वारा दशवांशों के द्वारा आपकी महिमा होने पाए प्रभु, और पूरी कलीसिया, पूरे आपके लोग, आप पर विश्वास करने वाले हर एक जन प्रभु आपकी ओर से वो आशीष को पा सके। स्वर्ग के प्रभु द्वार उनके लिए खुल जाए, ताकि परमेश्वर उनके जीवन में अपरंपार आशीष की वारिस आने पाए परमेश्वर पिता प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु इस समय के लिए। यीशु प्रभु आपके जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, और क्यों ना हम अपने घर से ही जोरदार ताली के साथ रेवरेंड डैनियल लेप्चा को स्वागत करें। Praise the Lord, my brothers and sisters. प्रेज द लॉर्ड मेरे भाई और बहनों, I am very glad to be back again with you. और आज मैं फिर से खुश हूँ कि मैं आपके आगे उपस्थित हूँ। It's so good to see you again this morning. और आज की सुबह आप सबको देखकर बहुत आनंद महसूस हो रहा है। God has been very gracious to us. और परमेश्वर हम सभी के ऊपर अनुग्रहकारी ठहरा है। He has kept us safe and sound. और उन्होंने हमें सुरक्षित रखा है। He has met all our needs. और उसने हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया है। He has always been faithful to us. और वो हमेशा हमारे लिए विश्वास योग्य ठहरा है। We'll just have a word of prayer before we go into the Word of God. और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में आए, हम दुआ करेंगे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father God, in the name of Jesus, परमेश्वर पिता यीशु के नाम में, bless the time today. और आज के समय को आप आशीष दे। You have been with us all through this, Lord, service today. और आज के पूरे सर्विस में आप हमारे साथ हैं। Wonderful worship service, O Lord. और बहुत ही अच्छा आराधना की सेवकाई Thank you for the में। anointing, धन्यवाद आपके अभिषेक के लिए, without which we cannot do anything. जिसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। Thank you, Lord, we could worship you and adore you. धन्यवाद कि हम आपकी आराधना हम कर पाए With the worship team, O Lord. आराधना के दल के साथ। And now I pray, और अब मैं प्रार्थना करता हूँ, bless the word that is coming. और जो वचन आ रहा है आप उसे आशीष दे। I commit myself into your hand. मैं अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ, Also Rachel, और रेचल को भी। let your word go in clarity. हो सके कि आपका वचन स्पष्ट रूप में जा सके। Holy Spirit, you take over पवित्र आत्मा आप हमें ले ले, entire time. पूरे समय को Speak to us. हमसे बात करे। We are sitting like Mary at your feet. और हम मरियम की तरह आपके चरण में बैठे हुए हैं, We are hungry for your word. और हम आपके वचन के लिए भूखे हैं। Thank you, Jesus, for loving us and giving us your word. धन्यवाद यीशु हमसे प्रेम करने के लिए और आपके वचन को देने के लिए। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु।
In your holy precious name we are this prayer. आपके पवित्र अनमोल नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Our great need is God's great opportunity. हमारी महान आवश्यकता परमेश्वर का महान अवसर है। This is the title of my message today. और ये आज मेरा संदेश का शीर्षक है। If you are in great need, अगर आप महान आवश्यकता में हैं, that means we are giving God a great opportunity. इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर को महान अवसर दे रहे That हैं। means the miracle is around the corner for you. और इसका यह मतलब है कि आश्चर्य कर्म आपके निकट है। If you are praying for a miracle, अगर आप आश्चर्य कर्म के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, it's on the way. वो अपने मार्ग में है। Cheer up. आप आनंदित हो जाएं। Hallelujah. हालेलुया। You are praying to God. आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, Keep praying. आप प्रार्थना करते Don't रहें stop praying. और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। Because persistent prayer is answered and honored. क्योंकि जिस प्रार्थना को हम लगातार करते हैं उसका परमेश्वर आदर करता है और उत्तर भी देता है। So our great need is God's great opportunity. और हमारी महान आवश्यकता परमेश्वर का महान अवसर है। Let's read 2 Kings 4:1-7. आइए हम दूसरा राजा 4 का 1 से 7 तक पढ़ेंगे। I'm reading from NIV. और मैं NIV से पढ़ रहा हूँ। The wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha, "Your servant, my husband, is dead, and you know that he revered the Lord. But now his creditor is coming to take my 2 boys as his slaves." Elisha replied to her, "How can I help you? Tell me, what do you have in your house?" "Your servant has nothing there at all," she said, "except a small jar of olive oil." Elisha said, "Go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask just for a few. Then go inside and shut the door behind you and your sons. Pour oil into all the jars, and as each is filled, put it to one side." She left him and shut the door behind, and her sons, they brought the jars to her, and she kept pouring. When all the jars were full, she said to her son, "Bring me another one." But he replied, "There is not a jar left." Then the oil stopped flowing. She went and told the man of God, and he said, "Go sell the oil and pay your debts. You and your sons can live on what is left." भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, "तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, और जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्र को अपने पास दास बनाने के लिए ले जाए." एलिशा ने उससे पूछा, "मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है?" उसने कहा, "तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है." उसने कहा, "तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना।" तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, "मेरे पास एक और भी ले आ।" उसने उससे कहा, "और बर्तन तो नहीं रहा।" तब तेल थम गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया, और उसने कहा, "जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना।" This poor widow is an example of a great need today. यह बेचारी विधवा आज हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत की मिसाल है। Our great need is God's great opportunity. हमारी महान आवश्यकता परमेश्वर का महान अवसर है। In such a need, she can't go anywhere else except to God. और ऐसे आवश्यकता के समय में वे परमेश्वर के सिवा कहीं नहीं जा सकती। Many a time, और कई बार
great faith is born out of great trials. महान विश्वास महान परीक्षाओं से पैदा होता है। In great danger and trials, we throw ourselves to God. बड़े खतरे और परीक्षा में हम अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर देते हैं। In such situation, we are compelled to trust God. और ऐसे परिस्थितियों में हम मजबूर होते हैं कि हम परमेश्वर पर भरोसा करें, Who is the all-sufficient one? जो कि हमारे लिए पर्याप्त है। We see three very important ingredients of miracle in the widow's family. हम विधवा के परिवार में आश्चर्य कर्म के 3 महत्वपूर्ण तत्व को देखते हैं। Listen very carefully, my brother, sister. आप इसे ध्यान से सुने मेरे भाई और बहनों, This will bless us. और ये हमें आशीष देगा। The three ingredients of a family और परिवार के 3 महत्वपूर्ण तत्व है for the miracle. आश्चर्य कर्म के लिए। Number one, पहला, that family was a devoted family, or you can say a godly family. हम ये कह सकते हैं कि वो परिवार एक ईश्वरीय परिवार था And there they had faith in God. और उनके पास परमेश्वर के ऊपर विश्वास था। Hallelujah. हालेलुया। And they had a means. और उनके पास एक साधन था। The prophet is asking her, और नबी वो स्त्री से पूछ रहा है, what do you have in your house? तुम्हारे घर में क्या है? What do you have in your house, brother, sister? आपके घर में क्या है मेरे भाई और बहनों? She said वो कहती in है verse 2, वो 2 आयत में, your servant has nothing in the house but a jar of oil. तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। My dear brother, sister, मेरे भाई और बहनों, you may lose money. आप पैसों को खो सकते हैं। You know, when difficult time comes, जब कठिन समय आता है, even when some tragedy hits us, और जब कोई त्रासदायक घटना हमारे जीवन में होता है, you may lose money. आप पैसों को खो सकते हैं, You may lose wealth. और आप धन संपत्ति को खो सकते हैं, Even you may lose your health sometime. और हो सकता है कि आप अपने स्वास्थ्य को भी खो दे। You may, sometimes lose your loved ones. हो सकता है कि आप अपने प्रियजनों को भी खो दे, But never lose your anointing. पर कभी भी अपने अभिषेक को ना खोए, Never lose your Holy Spirit in your life. और पवित्र आत्मा को अपने जीवन से कभी भी ना खोए। Hallelujah. हालेलुया। To her, to her what she had, little jar of oil, seemed nothing. और उस स्त्री के पास जो एक छोटा सा घड़ा तेल का था, उसके लिए वो कुछ भी नहीं था। But it contained the supply of all her need. पर फिर भी उसमें उसकी सभी जरूरतों की आपूर्ति शामिल थी। She did not realize that it was not just a little jar of oil. उसे इस बात का एहसास नहीं था कि यह तेल का एक छोटा सा घड़ा ही नहीं है, But it represents the power of the Holy Spirit. पर यह तो पवित्र आत्मा की शक्ति की प्रतिनिधित्व करता It है। represents the presence of God. यह तो परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता The है, infinite attribute of God Himself. स्वयं परमेश्वर का अनंत गुण। The Holy Spirit helped her believe पवित्र आत्मा ने उसे सहायता की विश्वास करने के लिए, what the prophet Elisha had said. जो नबी एलिशा ने कहा था। Elisha had said एलिशा ने कहा था in 3-6, और 3 से 6 में यहाँ लिखा है, go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few. Then go inside and shut the door behind, and you and your sons pour oil into all the jars, and each is filled, put it one side. She left him and shut the door behind her, and her sons, they brought the jars to her, and she kept pouring. When all the jars were full, she said to her son, bring me another one. But he replied, there is not a jar left. Then the oil stopped flowing. उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना।
तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल थम गया। Bring me another empty vessel. मेरे पास दूसरा खाली बर्तन लेकर आ। But the son said, not a jar left. पर बेटे तो कहते हैं कि अब कोई भी घड़ा नहीं है। God can fill only the empty vessels, my brother, sister. मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर केवल खाली बर्तनों को ही भर सकता है। Many a time we come before God, और बहुत बार हम परमेश्वर के पास आते हैं, but it seems nothing happens to us. पर ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा। You know why? आपको पता है क्यों? Because we come full before God. क्योंकि हम भर कर परमेश्वर के आगे आते We are हैं। filled with preconceived ideas. हम तो पहले से ही पूरे सोच विचार को लेकर आते हैं। We come before God with our own ideas and plans. और हम तो परमेश्वर के आगे हमारे ही सारे चीजों को बना कर आते हैं। We don't ask God, you tell me what you want. हम ये नहीं पूछते कि परमेश्वर आप क्या चाहते हैं, But we say, Lord, I have this plan, I have this idea, you bless me now. और हम कहते हैं कि परमेश्वर मेरे पास ये योजना है, ये आइडिया है, और अब आप इसमें आशीष को दे। If God gives that idea and plan, that's wonderful. अगर वो योजना परमेश्वर की ओर से है तो बहुत अच्छा है। But if that mere human plans and ideas पर अगर ये योजना हम मनुष्य के दिमाग से रचा गया है may not be acceptable before God. तो ये तो परमेश्वर के आगे ग्रहण योग्य नहीं है। So we need to empty ourselves before we come to God. और इसीलिए परमेश्वर के आगे आने से पहले हमें अपने आप को खाली करना है। Until unless you are emptying yourself, you empty yourself, God cannot fill you, fill us. जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करते हैं तब तक परमेश्वर हमें नहीं भर सकता। This widow and her sons must collect empty vessels. और यह विधवा और के बेटे को खाली बर्तनों को लेकर आना था। As long as there was an empty jar, oil kept flowing. जब तक उनके पास वो खाली घड़े थे तब तक तेल बहता गया। When she asked for another vessel, और जब उसने दूसरे बर्तन को मांगा and son says, और बेटे ने कहा, not a vessel left now. अब एक भी बर्तन नहीं है, Immediately the oil stopped flowing. तब तुरंत तेल थम गया। When you come before God, with emptying yourself, जब आप परमेश्वर के आगे अपने आप को खाली कर कर आते हैं, the Lord fills us. प्रभु हमें भरता है। Hallelujah. हालेलुया। God fills us. परमेश्वर हमें भरता है। No need is greater than God. परमेश्वर से बड़ी कोई भी आवश्यकता नहीं है। There is no need that God cannot supply to His children. ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है जो परमेश्वर अपने बच्चों को आपूर्ति नहीं कर सके। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। You may say, oh, this is too big a need that I have. आप कह सकते हैं यह तो बहुत बड़ी आवश्यकता है मेरे लिए। Oh, the work that I have taken, it is enormous. और जो काम मैंने लिया है ये तो बहुत बड़ा है। Brother, sister, no work, no need, no problem is bigger than our God. मेरे भाई और बहनों, कोई भी काम, कोई भी आवश्यकता, कोई भी समस्या हमारे परमेश्वर से बड़ा नहीं है। However great it may look before us. वो हमारे आगे कितना भी बड़ा क्यों ना लगे। Hallelujah. हालेलुया। But it's nothing before God. पर ये तो परमेश्वर के आगे कुछ God नहीं can है। meet all your needs. परमेश्वर आपकी सारी आवश्यकता को पूरा कर सकता God है। can heal all our diseases. परमेश्वर आपकी सारी बीमारियों को चंगा कर सकता God है। can restore everything you have lost. और परमेश्वर जो भी आपने खोया है उसका पूर्ति कर सकता God है। can bring healing and deliverance in your life, in your family. आपके जीवन में, आपके परिवार में परमेश्वर चंगाई और छुटकारा को ला सकता है। Whatever your situation is, आपका परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, whatever your problem is, आपका समस्या कुछ भी क्यों ना हो, however the great
great it may look, कितना भी महान या बड़ा क्यों ना लगे, just like the widow, जैसे इस विधवा की तरह come before God. आप परमेश्वर के आगे आए। She came before the man of God, the prophet. और वो तो परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता के आगे आती She है। wanted to hear from God. वो तो परमेश्वर से सुनना चाहती है। Hallelujah. हालेलुया। Because she had faith. क्योंकि उसके पास तो विश्वास था। Her was a godly family. उसका परिवार तो ईश्वरीय परिवार था। She had the jar of oil, और उसके पास तो वो तेल का घड़ा था, which is the symbol of the Holy Spirit. जिसका अर्थ है पवित्र आत्मा। So she had the presence of God in her life and family. और उसके जीवन और परिवार में परमेश्वर का उपस्थिति था। Hallelujah. हालेलुया। My brother, sister, मेरे भाई और बहनों, no need is greater than our God. कोई भी आवश्यकता हमारे परमेश्वर से बड़ा नहीं He can है। meet all our needs. वो हमारे सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। Our God is a Jehovah Jireh God. हमारा परमेश्वर तो यहोवा ईरे है। Our God is a Jehovah Rapha God. हमारा परमेश्वर तो यहोवा राफा है। But she brought empty jars. वो तो खाली बर्तन घड़ा को लेकर आती है। Hallelujah. हालेलुया। She brought empty jars. वो खाली घड़े को लेकर आती है। Or she came before God empty. और इसका ऐसे हम इसको देख सकते हैं कि वो खाली होकर She had आती no है। plan. उसके पास कोई भी योजना नहीं She है had no और idea उसके पास कोई भी आइडियाज नहीं है what she was going to do to meet the need. कि वो उसे क्या करना है अपनी आवश्यकता को She पूरा just करने के लिए। trusted God. उसने केवल परमेश्वर पर भरोसा किया। She came empty before God. वो तो परमेश्वर के आगे खाली बनकर आती है And God gave idea, plan, strategy. और परमेश्वर उसे योजना स्ट्रैटेजीज देता है। Hallelujah. हालेलुया। When we come before God empty, जब हम परमेश्वर के आगे खाली होकर आते हैं God gives us idea, plan. तो परमेश्वर हमें योजना आइडियाज को देता है। You want to do some business? आप कोई व्यवसाय को करना चाहते हैं? What business to do? कौन सा बिजनेस करना है? You want to buy a piece of land आप एक जमीन को खरीदना चाहते हैं for your house? अपने घर के लिए? Where you should buy that land? आपको वो जमीन कहाँ खरीदना है? You want to marry? आप शादी करना चाहते हैं? Whom to marry? किससे शादी करना है? You don't know. आपको नहीं पता। Before you plan anything, इससे पहले कि आप कोई भी योजना बनाए that the thought has been dropped in your heart, in your mind. और वो सोच अगर आपके हृदय में मन में अगर डाला गया है, That vichar, वो विचार जो आपके मन में डाला गया है, come before God. आप परमेश्वर के आगे Lord, आए। I want to do a business. प्रभु मैं एक व्यवसाय को करना चाहता I want to do हूँ, a job. मैं नौकरी करना चाहता I want to हूँ, buy a piece of land. मैं जमीन खरीदना चाहता हूँ, I want to marry now. मैं शादी करना चाहता But I हूँ, do not know whom to marry. पर मुझे नहीं पता किससे शादी I करना do not know है। which land to buy. मुझे नहीं पता कौन सा जमीन खरीदना I don't know है। where to build my house. मुझे नहीं पता मेरे घर को कहाँ बनाना I don't know है। what type of business to do. मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सा व्यवसाय को करना है। I do not know what type of job to do. मुझे नहीं पता किस प्रकार का नौकरी मुझे करना Lord, I है। come before you. मैं आपके आगे आता हूँ, Help me, Lord. मुझे सहायता करे प्रभु। God speaks to you. परमेश्वर आपसे बात करेगा। Hallelujah. हालेलुया। She shows tremendous faith there. वो जबरदस्त विश्वास वहाँ दिखाती है। She needed faith to see oil flowing to the empty jars. उसे खाली घरों में तेल बहते देखने के लिए विश्वास की जरूरत थी। You see, before that happened, इससे पहले कि ये हुआ, she must have believed what the prophet man of God has said. और उसने जो परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता ने कहा था उस पे विश्वास किया होगा। Hallelujah. हालेलुया। Without believing the word of God, she would not have done that. परमेश्वर के वचन में विश्वास किए बिना वो स्त्री ये नहीं कर सकती थी। She had believed. उसने विश्वास किया था। Yes, she believed the word of God. और उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास With किया her eyes of faith, और उसने अपने विश्वास की आंखों से she saw the oil
pouring into the jars. उसने देखा कि वो तेल वो घड़े में बह रहे थे। Hallelujah. हालेलुया। Before anything happens materially, इससे पहले कि हम वो चीजों को देखें होता हुआ, you must see with the eyes of faith. आपको विश्वास की आंख से देखना है। You know, God gives us eyes of faith. परमेश्वर हमें विश्वास की आंख को देता है। Before Abraham, his descendant, possessed the land, इससे पहले कि अब्राहम ने वो जमीन को ले लिया, God showed him, all the vast land before him. परमेश्वर ने उसके आगे जो वो विशाल भूमि थी, वो जमीन थे, उसको दिखाए। God wanted to see everything with the eyes of faith. परमेश्वर चाहता है कि हम सब कुछ विश्वास की आंख से देखें। Hallelujah. हालेलुया। The principle is the same even for you and me today. और यही प्रिंसिपल आपके और मेरे लिए है। Before anything you see happen physically, इससे पहले कि आप शारीरिक रूप में उसे होता हुआ देखें, you must be able to see with the eyes of faith. आपको उसे अपने विश्वास की आंखों से देखना है। Bible says in Hebrew 11:1. और बाइबल इब्रानियों 11:1 में ऐसा लिखा है, Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। Bible says बाइबल कहती है, faith comes by hearing and hearing the word of God. विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता It's है। very important for God's children to keep hearing the word of और God. ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के वचन को सुनते रहे। You must keep studying the word of और God. आपको परमेश्वर के वचन को मनन करते रहना है। Because by hearing the word of God, you will build up your faith. क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो आप अपने विश्वास को निर्माण करते And हैं। then when the tragedy hits you, और जब कठिन समय आपके जीवन में आता है, when the difficult time comes in your life, और जब समस्या से भरा हुआ समय आपके जीवन में आता है, when you are in need of something, और जब आप किसी भी चीज की आवश्यकता में होते हैं, you have faith. आपके पास विश्वास होता है। When the word of God comes to you, जब परमेश्वर का वचन आपके पास आता है, when you read a word, जब आप वचन को पढ़ते हैं and God asks you to do something, और परमेश्वर कहता है कि आप कुछ करें, just like here with this widow, जैसे कि यहाँ पे इस विधवा के जीवन में देखते हैं, she was full of poverty. वो तो गरीबी से भरी हुई थी She was in poverty, great poverty. और वो महान गरीबी में थी, And the people were coming to take her sons as slaves और लोग आ रहे थे कि उसके बेटों को वो बंदी बना ले, because they owe money to them. क्योंकि उसके ऊपर कर्ज था। And then the word of God comes to her. और फिर परमेश्वर का वचन उसके पास आता If she है। was not a believer, अगर वो विश्वासी नहीं होती, if she had not built up her faith, अगर उसने अपने विश्वास का निर्माण नहीं किया होता, then she could not have believed what the prophet said. तो जो नबी ने कहा था उसे वो विश्वास नहीं कर पाती। The prophet said to her, और नबी ने उससे कहा था, go and collect empty vessels, जाओ और खाली घरों को तुम अपने घर में लेकर आओ, not just a few, थोड़ा मत लेकर आना, many. पर बहुत सारे लेकर आना। As many as possible, you collect empty vessels जितना हो सके ज्यादा बर्तन को लेकर आना, and close the door behind और अपने पीछे द्वार को बंद कर लेना, and start pouring oil. और वहां पे तेल को उस पर उंडेलना। Hallelujah. हालेलुया। Oh my God. She should believe that. और उसे उसके विश्वास करना था, She believed that. उसने उसे विश्वास किया, She took the word of God literally. और उसने परमेश्वर के वचन को ले लिया। Hallelujah. हालेलुया। And oil kept pouring. और वो तेल बहता गया, Till there was an empty jar. जब तक वहां पे खाली बर्तन था। Oh, glory to God. परमेश्वर की महिमा We must हो। bring empty vessels. और हमें खाली बर्तनों को लेकर आना है, We must bring empty lives before God. और हमें अपने खाली जीवन को प्रभु के आगे लेकर आना है। Now, what is empty vessels? ये खाली बर्तन क्या है? What is empty vessels? और खाली बर्तन क्या है? Listen me carefully. ध्यान से सुने। People who have been hit by tragedies. जो लोग त्रासदी के चपेट में आ चुके हैं, People who are suffering with illness. बीमारी से जो लोग पीड़ित हैं,
people who are infected by COVID-19, और जिन्हें कोविड-19 से जो लोग संक्रमित है, broken marriages, जिनके विवाह टूट चुके हैं, children going out of the parents' control, और बच्चे अपने माता पिता के नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं, suffering and hurting people, लोग जो पीड़ित है, जो चोट पहुंचे हुए लोग हैं, people who have lost their loved ones, और जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, people who are lost in the world without salvation, और जो लोग इस संसार में उद्धार के बिना खो गए हैं, people who do not know Jesus, the Son of God, और जो लोग यीशु को जो परमेश्वर का पुत्र है उन्हें नहीं जानते, Jesus who came and died on the cross of Calvary, यीशु जो आया और कलवरी के क्रूस में मारा गया, you know, taking all our sins on himself, जिसने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, all our sufferings, our debts, our failures, our shame, everything, our guilt on himself and died on the cross. और जिसने हमारे सारे समस्या को, हमारे सारे पाप को, हमारे जो भी कुछ था उसने अपने ऊपर ले लिया, He took all our curse. और हमारे सारे श्राप को ले लिया। Bible says, बाइबल कहती है, curse is everyone who is hung on a tree. और जो पेड़ में लटकाया जाता है वो तो श्रापित है, He became a curse for us. वो हमारे लिए श्रापित बना, Jesus became a curse for you and me, my brother, sister. और यीशु आपके और मेरे लिए श्रापित बना, So that by his becoming curse, कि इससे कि जो वो हमारे लिए श्रापित बना, we might be blessed with the blessings of Abraham. कि हम अब्राहम के आशीष से हम आशीष को पाए। He was rich, he became poor for us. वो धनी था पर हमारे लिए गरीब बना, So that by his becoming poor, we might become rich. कि जब वो हमारे लिए गरीब बना तो उसके द्वारा हम धनी बनाए He जाए। became cursed for us. वो हमारे लिए श्रापित बना, So today we might be blessed today. कि आज हम आशीष को पाए। So people do not know Jesus, इसीलिए लोग जो यीशु को नहीं जानते हैं, who died for our sins जो हमारे लिए पाप के लिए मारा गया and rose again और जो फिर से जी उठा from the dead. मृत्यु से, And today Jesus is alive. और आज यीशु जीवित है। He is the Lord of Lords. वो तो प्रभुओं का प्रभु He is the है, King of Kings. वो तो राजाओं का राजा है, And he loves us. और वो हमसे प्रेम करता है, He wants to rescue people और वो लोगों को वापस पूर्ण निर्माण करना चाहता from है, their sin. The Lord Jesus wants to deliver them. और उनके पापों से उन्हें प्रभु छुटकारा देना चाहता The Lord wants है। to forgive their sins. प्रभु उनके पापों को क्षमा करना चाहता The Lord है। Jesus wants to heal the sick. प्रभु यीशु उनको चंगाई देना चाहता है, The Lord Jesus wants to bring peace and joy in the life and family. और प्रभु यीशु उनके जीवन में परिवार में शांति आनंद को लेकर आना चाहता But there है। are many people who do not know that. पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसे नहीं जानते। Hallelujah. हालेलुया। They are the empty vessels. वो है खाली बर्तने। Oh, glory to God. प्रभु की महिमा हो। Jesus had died for us. यीशु हमारे लिए मारा गया, So today we will not die in our sin. और कि आज हम अपने पाप में ना मरे, And the Lord wants us, और प्रभु चाहते हैं we should bring empty vessels before Jesus, before our God. कि हम खाली बर्तनों को परमेश्वर यीशु के आगे लेकर आए। Hallelujah. हालेलुया। We are surrounded by many empty vessels, और हमारे चारों ओर बहुत सारे खाली बर्तने हैं, suffering people, जो लोग समस्या कष्ट में हैं, people living in the world without a hope, और जो लोग संसार में आशा बिना जी रहे हैं, people living in the darkness. और जो लोग अंधकार में जी रहे हैं। One touch from the Lord Jesus, एक स्पर्श प्रभु यीशु से the life will be completely changed. उनकी पूरी जीवन जिंदगी बदल सकती है, They will receive new hope. और वो नए आशा को प्राप्त करेंगे, They will receive a purpose for their life. और अपने जीवन के लिए उद्देश्य को पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। The Lord wants to bless us. प्रभु हमें आशीष देना चाहता है, And today we have a message from the Lord. और आज हमारे पास प्रभु की ओर से संदेश है। We have to come before God. हमें प्रभु के परमेश्वर के आगे आना है, We have to bring ourselves before God हमें अपने आप को परमेश्वर के आगे लेकर आना as है, empty vessels. खाली बर्तन के रूप And also we में, have to bring others और हमें दूसरों को भी लेकर आना है,
who are empty. जो खाली है। The Lord wants to fill each life, my brother, sister, today. प्रभु हर जीवन को आज भरना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। The Lord wants to fill every life. और प्रभु आज हर एक जीवन को भरना चाहता है। Oh, glory to God. परमेश्वर की महिमा हो। Oh, come on, give the Lord a mighty hand, brother, sister. आइए परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाएं। God loves us. परमेश्वर हमसे प्रेम करता He wants है। to change our life. वो हमारे जीवन को बदलना चाहता है। But one thing, पर एक चीज है, God can fill only the empty vessels. परमेश्वर केवल खाली बर्तनों को ही भर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। The Lord wants to meet the needs of the people. और आज प्रभु लोगों की जरूरतों आवश्यकता को पूरा करना चाहता है। Yes, when people come to Jesus हाँ, जब लोग यीशु के पास आते हैं and cries out to Him, और जब वो प्रभु को पुकारते हैं prays to Jesus, और वो यीशु से प्रार्थना करते हैं, no matter whosoever they are, वो कोई भी क्यों ना हो, the Lord out of the great compassion और प्रभु- listens to them, hears the prayer, और प्रभु अपनी बड़ी करुणा से उनको सुनता है and He touches them, delivers them, heals them. और उनको स्पर्श देता है, छुटकारा चंगाई देता है He gives them peace and joy. और वो उन्हें शांति और आनंद को देता है Jesus saves them. और यीशु उन्हें बचाता है। Here in this world, और ये इस वचन में, in this life, इस जीवन and में also in the life to come. और जो जीवन आने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। And the oil did flow. और वो जो तेल था वो बहता गया। Hallelujah. हालेलुया। The oil did flow out of that jar to empty jars. हाँ, वो तेल वो खाली बर्तन में वो बहा, वो वहां पे आया And every empty vessel was filled. और हर एक Hallelujah. खाली बर्तन वहां पे वो भरा गया। Oh, praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। No one who comes to Jesus और कोई भी जो प्रभु के पास आता है will not return empty. वो खाली नहीं लौटेंगे। The Bible says, बाइबल कहती है you can read in gospel, और आप इसे सुसमाचार में पढ़ सकते हैं, the crowd used to throng to Jesus. और भीड़ अपने आप को यीशु के आगे वो फेंकती थी। And Bible says, और बाइबल कहती है Jesus had compassion on them. और यीशु बड़ी दया से भर उठता था And He healed all their sickness. और उनके सारी बीमारियों को चंगाई देता When था। Jesus saw the crowd और जब यीशु ने भीड़ को देखा who were with Him for 3 days, और जो उसके साथ 3 दिन से थे, and Jesus said to disciples, और यीशु अपने चेलों को कहता है, I don't want to send them hungry. मैं उन्हें भूखा नहीं भेजना You चाहता, must give them something to eat तुम्हें उन्हें कुछ खाने के लिए देना so that they है don't collapse on their way back home. कि वो अपने मार्ग में वहां पे गिर ना जाए। And with 5 loaves and 2 fish, He feeds those 5,000 people. और 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 को खिलाता है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus wants to fill every life. और आज यीशु हर जीवन को भरना चाहता है। Jesus loves every hurting people. यीशु हर एक चोट खाए गए लोग से प्रेम करता है। Jesus loves every person who is who is suffering in any way. और यीशु हर एक जन से प्रेम करता है जो किसी भी रूप से पीड़ित है। And then और फिर all her debts were paid. और उसके सारे कर्ज चुका दिए गए And she with her sons could live on what was left. और जो कुछ बचा था उस पर वो अपने बेटों के साथ रह सकती थी। Glory to God. परमेश्वर की महिमा Her हो। poverty was gone. और गरीबी वहां पे अब नहीं है। Praise the Lord. हालेलुया, प्रेज द You लॉर्ड। know the 3 ingredients that she had in her family? और आपको पता है वो 3 महत्वपूर्ण तत्व जो उसके पास थे, They were godly family. वो था ईश्वरीय परिवार। Hallelujah. हालेलुया। God-fearing family. और परमेश्वर का भय मानने वाला परिवार। They had faith. उनके पास विश्वास था They had the means. और उनके पास साधन भी था They had the jar of oil. और उनके पास वो तेल के घड़े थे। Yeah, they had become poor. Yes. हाँ, वो गरीब हो गए,
but they had the presence of God with them. पर उनके पास तो परमेश्वर का उपस्थिति They had था, the anointing of the Holy Spirit with them. उनके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक था। Yes, brother, sister, let me tell you again. हाँ मेरे भाई और बहनों, मैं आपको फिर से कहूँ, You may lose everything. आप सब कुछ खो सकते हैं, Don't lose the anointing of the Holy Spirit. पर पवित्र आत्मा के अभिषेक को ना खोए। You know, our Bible said, do not quench the Holy Spirit. और बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा को खेदित ना करो। Hallelujah. हालेलुया। I want to close my message with few questions this morning. और आज की सुबह मैं अपने संदेश को कुछ प्रश्न से अंत करना चाहता हूँ। Please think over it. आप इसे कृपया करके इसके बारे में, इसके ऊपर आप सोचें। Don't answer to me. आप मुझे इसका उत्तर ना दे, That I'm going to put this question before you. जैसे मैं इस प्रश्न को आपके आगे रखता हूँ। Number 1, पहला, where is your faith? आपका विश्वास कहाँ है? Where is your faith? आपका विश्वास कहाँ है? Second, दूसरा, how is your family? आपका परिवार कैसा है? My brother, my sister, how Me- is your family? मेरे भाई और बहनों, आपका परिवार कैसा है? The widow family was a godly family. और जो ये विधवा का परिवार था, वो तो एक ईश्वरीय परिवार था, They had faith in them. और उनके पास विश्वास था। Third, तीसरा, when you are hit with tragedy, जब आप समस्या में पड़ जाते हैं, when you have problems, जब आपके पास कठिनाई समस्या होता है, where do you go to find answer? आप उस सवालों के उत्तर के लिए कहाँ जाते हैं? Where do you go to get solution to your problems? आप अपने समस्याओं का समाधान के लिए कहाँ जाते हैं? Do you go to Jesus क्या आप यीशु के पास जाते हैं, or do you run after people? या फिर आप लोगों के पीछे भागते हैं? This widow, ये स्त्री, she went to the man of God, the prophet. ये विधवा तो परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता के पास जाती She है। wanted to hear God's voice for her situation. वो अपने परिस्थिति के लिए परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहती थी। God speaks, my brother, sister. परमेश्वर बात करता है मेरे भाई और He is a बहनों। living God. वो तो जीवित परमेश्वर है। He is a living God. वो तो जीवित परमेश्वर है। Jesus Christ, yesterday, today, forever, He is the same. यीशु मसीह कल, आज, युगानुयुग हमेशा एक ही रहता है। Our God is unchanging God. हमारा परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता He है। is the same Almighty God. वो तो वही महान परमेश्वर He है। is same powerful God. वो तो वही सामर्थी परमेश्वर He है। is the same prayer answering God. वही परमेश्वर आज भी सब हमारे प्रश्नों का उत्तर देता है। Fourth and last, चौथा और आखिरी, do you bring empty vessels, empty lives before God in the house of God? क्या आप परमेश्वर के भवन में खाली बर्तनों को, खाली जीवन को लेकर आते हैं? God expects you and me to bring empty vessels, empty lives in the house of God. परमेश्वर हमसे ये उम्मीद रखता है कि हम खाली बर्तनों को, खाली जीवन को उसके आगे लेकर आए। The question is, do you bring empty vessels in the house of God? प्रश्न ये है कि क्या आप खाली बर्तनों को परमेश्वर के भवन में लेकर आते हैं? God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। I want to pray for you all. मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Let's close our eyes and bow our heads. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने सिर को झुकाएं। Father God, in the name of Jesus, परमेश्वर पिता यीशु के नाम में please bless all my brothers and sisters मेरे सारे भाई और बहनों को आशीष दे, from wherever they are joining us. जहाँ कहीं से भी आज वो हमारे साथ जुड़े हैं। Your Lord, you have enabled us to take your word across to our brothers sisters. प्रभु, आपने हमें सहायता की है कि हम आपके वचन को हमारे भाई बहनों तक पहुँचा सके। You have given us your word this morning, O Lord. और आज के सुबह आपने हमें आपका वचन दिया है प्रभु। Yes, Lord, we are going through difficult times. हाँ प्रभु, हम कठिन समय से गुजर रहे हैं Many of us have been hit by tragedies. और हम में से बहुत वो त्रासदिसा से हम उसमें फंसे हुए हैं। Many of us are going through great lack, O Lord. और हम में से बहुत बड़ी आवश्यकता से गुजर रहे हैं। Many of us are going through unprecedented situation, O Lord. और हम में से बहुत ऐसे कठिन समय से हम गुजर रहे हैं। And many of us do not know what to do in the Lord next.
और हम में से बहुत को नहीं पता कि हमें आगे क्या करना है। Lord, there is no other way than to come before you. प्रभु, और कोई चारा नहीं है, बस यही है कि हम आपके आगे आए। Yes, Lord, we have a great need. हाँ प्रभु, हमारे आगे बहुत महान और बड़ी आवश्यकता है। If you don't interfere, अगर आप बीच में ना आए, if you don't stretch out your hand and touch us, अगर आप अपने हाथ को बढ़ाकर हमें स्पर्श ना दे, we have no hope in the world. तो हमारे पास इस संसार में कोई आशा नहीं होगा। But our great need is your great opportunity, O God. पर हमारा महान आवश्यकता तो आपके लिए महान अवसर है। I believe, O Lord Jesus, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु, as we're claiming your word, believing your word, जैसे हम आपके वचन को घोषणा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, Lord, we believe that you will do a miracle in our life. हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म को करेंगे। Lord, I pray, प्रभु, मैं प्रार्थना करता help हूँ, us all हम हर एक की सहायता करें to be a godly people, कि हम ईश्वरीय लोग बने, God-fearing people, प्रभु का भय मानने वाले लोग बने, people of faith in God. और विश्वास के लोग बने हम। Hallelujah. हालेलुया। Oh Lord, ओ प्रभु, help us to have the presence of God with us. सहायता करें कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में लेकर Lord, चलें। just like the widow, help us to run to you, Lord. इस विधवा की तरह सहायता करें कि हम आपके और हम दौड़े। Increase our faith, O Lord, हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु, because you are our loving and Lord and a faithful God. क्योंकि आप तो प्रेमी और विश्वास योग्य परमेश्वर है। Lord, I pray for all my brothers, sisters. प्रभु, मैं अपने सारे भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, Bless each of us, O Lord. हम हर एक को आशीष दे। Anyone, my brother, sister, मेरे भाई और बहनों में से कोई भी if they are sick, अगर आप बीमार हैं, Lord, please touch them. प्रभु उनको स्पर्श दे। If they have been, Lord, got infected by COVID, अगर वो कोविड के संक्रमित हुए हैं, Lord, please deliver them, heal them. प्रभु उन्हें छुटकारा दे, चंगाई दे। Heal their lungs and all their inner organs, O Lord. उनके फेफड़ों को, उनके अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, आप उन्हें चंगाई दे। Lord, brother, sister, who are suffering great, Father God, lackings, और जो भाई बहन जो बहुत बड़ी घटी कमी में है, Lord, you are their Jehovah Jireh. आप तो उनके यहोवा यीरे हैं। Meet their needs, O Lord. उनके सारे आवश्यकता को पूरा करें, Open closed doors for them. और उनके लिए जो द्वार बंद हो गए हैं उन्हें खोल दे। Give them ideas and plans, O Lord. उन्हें नए आइडियाज और योजना दे, Just like you gave to this widow. जैसे आपने इस विधवा को दिया था। Lord, please bless your children. प्रभु अपने बच्चों को आशीष दे, Lord, we receive your word with humbleness. और हम आपके वचन को नम्रता से हम ग्रहण And we करते ask you हैं, to forgive us for not having enough faith. और हम प्रार्थना करते हैं कि हमें क्षमा करें कि हमारे पास उतना ज्यादा विश्वास नहीं था। Forgive us for not coming to you in times of our need. हमें क्षमा करें कि हम अपनी आवश्यकता के समय में हम आपके पास नहीं आए। Forgive us for not to be careful to keep the presence of God in our life and family. हमें क्षमा करें कि हमने ध्यान नहीं दिया कि आपकी उपस्थिति को हमारे जीवन और परिवार में बरकरार रखें। Thank you, Lord Jesus, for hearing our prayers. धन्यवाद यीशु हमारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, In the name of Jesus, we ask this prayer. और यीशु के नाम में हम प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। We share the grace together. हम अनुग्रह को एक साथ बोलेंगे। The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with us now and forever and ever. Amen.